Namaskar, hello and welcome back. In today's video, I'll be talking about one particular habit, right, which is very crucial, and if you're infected with this habit, and with very huge responsibility, I'm saying this. If you're infected with this habit, it is definitely going to cost you a lot, right? Trust me, it is definitely going to cost you a lot, because I've seen people being suffered because of this particular one habit, right? Even if at all you are an employer, even if at all you are an employee, even if at all you are a student, housewife, whatever you are, whoever you are, if you are infected with this one particular habit, it is definitely going to cost you, right? This particular habit keeps us busy, right? This particular habit drains us. It's like it's a dead investment. आप हर चीज़ करते हो, लेकिन इसमें से रिजल्ट कुछ नहीं निकलते, राइट? सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट विथ zero returns, or I should say the returns are in negative, right? So this one particular habit you should definitely take care of, that you are not getting involved into this one particular habit. This habit is nothing but gossiping, right? We all are aware of what gossiping is, right? But still, अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन विच इज शेयर्ड विथ यू बाय समवन हु ट्रस्ट यू, right? And you share it with somebody, right, without even understanding or without even realizing that you are breaking the trust of that person who has shared it with you, right? So it's a personal information given to you, right? So this particular habit is something which puts us into bad books, and the worst part is we are not even aware of that this particular habit is how it is going to come back to us, right? Probably it comes back to us in a most unpleasant way, right, which we are not ready for that, right? So you should definitely avoid getting into gossiping. How a person should get rid of gossiping, right? So very simple technique that generally I use to avoid gossiping. The first thing that I do is, whenever any person comes to me and says that, have you heard about XYZ, or do you know what happened? So, इस तरह से अगर कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, या इस तरह से कोई कन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ गॉसिप, राइट? तो कोई आपके पास आता है, खड़ा होता है, पता है वो उसके साथ क्या हुआ, अरे वो उसके बारे में सुना। इस तरह की कॉन्वर्सेशन अगर आपके साथ हो रही है, तो इट इज़ 99% ऑफ द टाइम्स इट इज़ गॉसिपिंग, राइट? सो व्हाई people get involved into it. It is a very good thing at times, right? कि आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है, और बहुत अच्छी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अलग या बहुत कुछ नया आपने कुछ कर दिया, बट इसमें से रिजल्ट आपको कुछ नहीं निकलते, और जिस तरह से रिजल्ट निकल करके आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप बिगड़ ही जाती है, राइट? अगर आप किसी के बारे में अगर आप बात कर रहे होते हैं, राइट? सो मैं जब किसी तरह की गॉसिप को अगर अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जनरली कुछ सवाल अपने आप से पूछता हूँ, या उस व्यक्ति से मैं सवाल पूछता हूँ कि भैया जो बात मुझसे करने के लिए आए हैं, तो पहला सवाल मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि भैया जो कुछ भी आप उनसे कहने वाले हैं, बिफोर दे स्टार्ट शेयरिंग वट एवर दे आर प्लानिंग टू शेयर, राइट? So when they come to me and say, honey, this is something which I wanted to share, first thing is, whatever you are going to say, is this true? Right? That's a very important question that anybody should ask, right? Whatever you are going to say, is this true, right? Is it 100% correct? So if you are very much sure that it is 100% correct, then only you can lend your ear to listen to it. That's number one, right? If the person says that probably I'm not sure, first question, if the answer is I'm not sure, or no, it is not true, or no, I have heard it from someone, और it comes by my sources, right? Sources, अगर इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, avoid getting into that discussion, that conversation itself, right? फिर भी मान लीजिए अगर वो बात आगे बढ़ती है, फर्स्ट क्वेश्चन इज शायद सही हो सकता है, बट सेकंड क्वेश्चन दैट यू शुड डेफिनेटली आस्क दैट पर्सन इज, डज इट इन्वॉल्व मी, राइट? क्या ये मेरे बारे में बात हो रही है, राइट? सो अगर उस सवाल का जवाब, अगेन इफ द आंसर इज नो, then again you need to be very careful that this is 100% a gossip, you need to take care of it, right? So ये सच भी नहीं है, या आप जानते नहीं है वो सच है या नहीं है, दूसरा ये आपसे रिलेटेड नहीं है, getting it, right? And the third and the most important question is it going to do any good to me, right? क्या ये मेरे लिए कुछ अच्छा करने वाला है? क्या मैं एज एन इंसान ग्रो करने वाला हूँ? क्या मैं मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है,
ये सारी चीज़ें जो कुछ आप मुझसे बताने वाले हैं, इसको सुनने के बाद अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपको कंसिस्टेंटली ना 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 या डोंट नो की तरह के अगर आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ डेफिनेटली गेट इनटू द मोड ऑफ अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। जब आप गॉसिप को अवॉइड करते हैं, राइट, इट्स लाइक यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। जब आप इसको अवॉइड करते हैं, जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट, तो आप अपने आप को डेफिनेटली 3-4 स्टेप्स आप डेफिनेटली अपने आप को नीचे खींच लेते हो, विच इज़ नॉट गुड, राइट। एज अ पर्सन इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। सो व्हाट यू शुड डू इज़ इफ अगर आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर, बिकॉज यू अर्न ट्रस्ट ऑफ सम पीपल, राइट। आपको लोग देख रहे होते हैं, यू आर ऑलवेज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय पीपल। हमेशा लोग आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। So if people are observing you and at times if you are not getting involved into gossip, then you earn that trust. So when you have earned that trust, people feel कि बस इस बंदे के पास जाकर के मैं अपने दिल की बात बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ना किसी की बात सुनता है, अगर वो किसी की बात सुन नहीं रहा है तो मेरी बात किसी और के पास जाकर के करेगा भी नहीं, राइट। सो ये भरोसा अपने आप आपके ऊपर डेवलप हो जाता है, आपके ऊपर भरोसा डेवलप हो जाता है जो आपने डेफिनेटली अर्न किया हुआ है, राइट। सो वंस द थिंग्स दैट यू हैव अर्नड, यू डेफिनेटली वैल्यू देम मोर, राइट। सो यू शुड ऑलवेज इंश्योर दैट और एक इंग्लिश में बड़ी एक अच्छी कहावत है जो ये बोलती है, राइट, दैट गॉसिप एंड्स व्हेन इट हिट्स द ईयर्स ऑफ अ वाइज मैन, right? So the question you should definitely ask yourself is, are you really wise? Are we really wise, right? अगर मैं wise हूँ, अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो क्या ये चीज़ मेरे पास आने के बाद, मुझ तक पहुँचने के बाद वहीं ये चीज़ ख़त्म हो जा रही है या मुझसे और आगे जाने की कोशिश कर रही है? अगर मुझसे और आगे जाने की कोशिश कर रही है तो मेरे वाइज होने पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है, राइट। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर कोई आपसे किसी और की बात कर रहा है, राइट, जो बंदा आपसे आकर के बात करता है किसी और के बारे में, राइट, उसने तो अपना भरोसा आपके सामने गंवा दिया, उसने उस बंदे का भी भरोसा आपके सामने गंवा दिया, राइट। सो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ इसलिए आपके साथ में बोल रहा हूँ। अगर कोई किसी और की बात आपसे कर सकता है, राइट, अगर कोई किसी और की बात आपसे कर सकता है, तो कोई वही बंदा आपकी बात किसी और से भी कर सकता है, राइट। लोगों पर भरोसा करने के लिए इससे आसान पैरामीटर मेरे हिसाब से दूसरा कोई नहीं है, राइट। अगर कोई किसी और की बात आपसे आकर के कर सकता है तो वही बंदा आपकी बात किसी और से भी जाकर कर सकता है, राइट। सो इट इज़, किसी और के ऊपर भरोसा करने से पहले इन पैरामीटर्स पे भी अगर आप एक बार सोच लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी ईजी, राइट, फॉर अस टू आइडेंटिफाई पीपल whom to trust and whom not to trust, right? एंड एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सटीक बैठता है इस चीज़ के ऊपर। व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी एल्स, राइट, यू टॉक अबाउट व्हेन यू टॉक अबाउट समबडी एल्स, राइट, यू टॉक वेरी लेस अबाउट दैट पर्सन बट यू स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट योरसेल्फ। अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप किसी और के बारे में कम, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, राइट। सो मैं ये समझता हूँ कि रेट, अगर आप गॉसिप से अपने आप को बचाना चाहते हैं, गॉसिप में ना इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करना चाहते, या गॉसिप अपने आपके पास आने के बाद उस गॉसिप को वहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, या आपसे आगे किसी गॉसिप को अगर आप नहीं जाने देना चाहते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, राइट, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने डेफिनेटली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपने उसके ऊपर सोचना चाहिए, राइट। और जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा कभी भी ये दावा नहीं रहेगा जो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ये 100% सच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। ये मेरे पैरामीटर्स के ऊपर मैंने जो चीज़ें देखी, सोची, समझी, मैं उन चीज़ों के ऊपर से आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस मैं इसमें लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपके सामने ये चीज़ें लेकर के आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि गॉसिप एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बिजी रखती है और अननेसेसरीली हम लोगों को बिजी रखती है, बहुत अनप्रोडक्टिव चीज़ है, राइट। और घर हो, आस पड़ोस का माहौल हो, ऑफिस हो, कॉलेजेस हो, राइट, हर दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं हम लोगों को गॉसिप ही सुनने के लिए मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड डू एज एन ह्यूमन बीइंग इज़ टू अर्न द ट्रस्ट, राइट। अगर आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं तो लोग आपके पास आकर के अपना दिल हल्का कर सकते हैं, राइट। और दुनिया में इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता कि लोग आपके पास आएँ और अपना दिल आपके सामने खोल के रख दें और आपको लगे कि अच्छा, दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी का दिल संभाल के रखना, या किसी की बहुत तो दिल के करीब वाली बातों को अगर आप संभाल के रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इफ़ इट इज़ अ वन वे ट्रैफिक व्हेन पीपल आर टॉकिंग टू यू, राइट, देन आई बिलीव दैट वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो
आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। और अब तक आपने जितना भी मुझसे अपने वैल्यूबल कमेंट्स और आपकी जो इनपुट्स आपने मुझ तक अब तक शेयर किए हैं, मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली काम कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियोस में भी अगर आपको लगता है कि वीडियोस में भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कुछ वीडियोस में मेरे पिछली बार भी मुझे कुछ करेक्शंस के सुझाव मुझे मिले, मैंने उनके ऊपर भी काम किया। आई एम होपिंग दैट जो चेंजेस मैंने किए वो आप लोगों ने डेफिनेटली ऑब्जर्व किए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझसे शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगेन as still we are into the zone of danger unfortunately, right? जो पूरी दुनिया इस वक्त उन सारी चीज़ों को फेस कर रही है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ stay home and stay safe, right? So hope to see you all very soon, and thank you so much and all the best. God bless you. Thank you.